دشمنان نبی کو بتا دیجیے، ہاتھ میں ان سبوں کو ملا دیجیے، عصمتی ان کو تیور دکھا دیجیے، عصمتی ان کو تیور دکھا دیجیے، عصمتی ان کو تیور دکھا دیجیے، کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجیے، کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجیے، کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سامعین اکرام، جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور کالج اسکول میں جاتے ہیں یا 4-5 لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کو سکھانے کا سمجھانے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ماں باپ کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ نہ ان کو تعلیم دلاتے ہیں، نہ ان کو تعلیم دیتے ہیں، نہ ان کو دین سکھاتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں، بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی طریقے کا ایک شخص جو آیا بات کرنے کے لیے، اب اس کے عقیدے کو آپ دیکھیں، اس گفتگو کو پورا سماعت فرمائیں اور خدارا اپنے بچوں کو دین سکھائیں، علم سکھائیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ بس اتنا ہی کہوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہو سکے تو اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم جمشید بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی، یہ عاشق بھائی، ان کا نام عاشق ہے، عاشق مرزا۔ تو آپ لوگ لائن پہ، آپ لوگ بات کر لیں، ہم چھپ ہیں، ٹھیک ہے؟ عاشق مرزا صاحب، جی ہلو۔ جی میں سن رہا ہوں سر۔ جی میں کہا آپ آج کی تاریخ میں کس کو فالو کر رہے ہیں؟ جناب ہمارے نبی کی سنت ہے اور صحابہ نے جو خطے دیے، جو سنت ہے صحابہ کی، انہوں کو فالو کرتے ہیں۔ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ فالو جو ڈائریکٹ ہوتا ہے نا، تو ہم امام ابو حنیفہ کے جو جس طرح سے بتایا نا، اس طرح سے فالو کرتے ہیں۔ کس نے بتایا امام ابو حنیفہ کو فالو کرو آپ کو؟ مطلب سمجھا نہیں میں آپ کی بات۔ آج کس امام نے تو بتایا ہوگا نا؟ نہیں، مجھے اس طرح سے کسی امام نے نہیں بتایا، مجھے تو ان کے جو کال ملتے ہیں نا، جس طرح سے حدیث کو انہوں نے پیش کیا ہے ہمارے سامنے، کس نے؟ تو امام ابو حنیفہ نے۔ امام ابو حنیفہ کی کون سی کتاب پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں سر، میرے بات کو سمجھیں، میں کس طرح سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کتابوں کا گیان ہے کہ نہیں میرے پاس، میں تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، سنیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، میں نے ان کا کیا عقیدہ تھا؟ میں یوں کہہ رہا ہوں آپ سے جناب کہ ہماری بحث امام ابو حنیفہ نہیں ہے، ہماری بحث یہ تھی کہ ہم نبی سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ارشاد فرما رہا ہے، اچھا، کہ اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، جی، اور اگر میرا نبی تمہارے حق میں شفاعت کر دے تو تم اللہ کو بہتر بخشنے والا پاؤ گے۔ بالکل بالکل۔ تو یہاں پہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ مجھے ان چیزوں سے اختلاف ہے ہی نہیں، بے شک۔ ارے بات سنیے نا بھائی، بات تو سنیے۔ یہاں سے ظلم سے مراد ہے گناہ کبیرہ۔ اچھا، تو ہم نے گناہ کبیرہ کر لیا، جی، تو ہم حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے بتائیے ذرا۔ حضور کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرا نبی اگر تمہارے حق میں شفاعت کر دے تو بہتر تم اللہ کو بخشنے والا پاؤ گے۔ اب سنیے تو جناب، سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 8345۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے جب بھی کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ بے شک بات ہے، تو اللہ کے رسول سنتے ہیں؟ بالکل۔ اچھا، تو جب صحابہ کرام کو کوئی حاجت آتی تھی، جیسے بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی پہنچے حضور کے پاس، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا،
अच्छा। जितना पानी भी नहीं कि वजू कर लें। अल्लाह के रसूल ने कहा जितना पानी है सब लेकर के आओ। अच्छा तो अल्लाह के रसूल ने अपना दस्ते मुबारक उस बर्तन में डाला, अच्छा उंगलियों के चश्मे से पानी निकले, जी। साहबा ने पिया, लाखों की तादाद थी उस वक्त साहबा की। साहबा ने पिया, मशकीजे भरे, सैलाब हुए। तो अल्लाह के रसूल से मदद मांगी साहबा ने, पानी के ताल्लुक से हुआ। और बात से बहुत सी हदीसें मौजूद है। और अल्लाह के रसूल खुद फरमा रहे हैं कि मैं सुनता हूँ जब तुम मुझसे दुरूद और सलाम पढ़ते हो, मैं सुनता हूँ और जवाब भी देता हूँ। अल्लाह के रसूल को ये भी मालूम है कि कौन सा शख्स कहाँ से दुरूद पढ़ रहा है मुझ पर, ईमान वाला है या बेईमान है। नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल आप हक बोल रहे हैं, इस बारे में कोई वो गुमराही वाली बात नहीं है। मेरा भी ये किया कि हमारे नबी सुनते हैं कब्रों में, अगर हम उनसे सलाम करते हैं, दरूद भेजते हैं, वो सुनते जवाब देते हैं, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन बात चल रही है सर दुआ की। तो वही तो आपको बता रहा हूँ, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होने के लिए अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे नबी की बारगाह में तुम हाजिर हो जाओ। और मेरा नबी चाहे तो, मेरा नबी अगर तुम्हारे हक में, यहाँ पे अगर लगाया, तुम्हारे हक में शफाअत तलब करे तो अल्लाह को बेहतर बख्शने वाला पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बार बताएं, रोजे कयामत में अल्लाह ज्यादा रूबरू होगा या अंबिया ज्यादा रूबरू होंगे? अल्लाह ज्यादा रूबरू होगा। अल्लाह हमारे नजदीक होता है रोजे महशर में, कयामत में अल्लाह हमसे हमें ज्यादा नजदीक होगा, हमारे रूबरू होगा। रूबरू मतलब हमारे सामने होगा। लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम अल्लाह से डायरेक्ट जाके कहें या अल्लाह हमारी शफाअत कर दे। अल्लाह ने कहाँ भेजा हमें? अंबिया की बारगाह में। सबसे पहले मतलब आपके कहने का ये है, पहले सुनिए बात, सुनिए, अंबियाओं से मोहब्बत करते हैं तो शफाअत मोहब्बत की यहाँ बात नहीं हो रही ना। तो यहाँ बात क्या हो रही है सुनिए। तमाम उम्मत, तमाम से मुराद जानते हैं ना, बुखारी की हदीस है, तमाम उम्मत हजरत आदम के पास जाएगी, अरे आदम हमारी शफाअत कर दे, आप अल्लाह के पहले नबी दुनिया में तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज किसी और के पास जाओ। तो उसके बाद हम लोग मूसा, ईसा, इब्राहिम, अबू दाऊद, तमाम अंबिया की तरफ से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे? हुजूर की बारगाह में। बिल्कुल। हुजूर फरमाएंगे अना लहा, मैं तो हूँ ही मदद करने के लिए। हुजूर कहाँ पहुंचेंगे? फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे और ऐसा सजदा करेंगे, ऐसी हमद करेंगे कभी किसी ने ना की होगी। बिल्कुल। अल्लाह कहेगा हे महबूब सर उठा, मांग क्या मांगता है, हमारी शफाअत कराएंगे। अब दूसरी चीज ये है, सूरह तहरीम आयत नंबर 4, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह। सबसे पहले किसको रखा अल्लाह ने? अपने आप को। उसके बाद जिब्राइल, उसके बाद नेक मोमिन स्वालिहीन बंदे, उसके बाद तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर हैं। अब ये बताएं कि अल्लाह ने जिब्राइल को अलग क्यों किया? क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और फरिश्तों की जमात अलग है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा अलग है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह, जिब्राइल, नेक मोमिन स्वालिहीन बंदे और तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर हैं। अब मदद से मुराद क्या होती है? मदद से मुराद ये होती है कि एक दुनियावी मदद होती है और एक गैबी मदद होती है। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पर जिसको बच्चा नहीं होता था ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है मुर्दे को जिंदा करते थे। जो मुर्दा हो जाए, जिसकी मौत हो जाती थी, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा कर देते थे। कुरान में इरशाद फरमाते ईसा अलैहिस्सलाम की मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ, कुम बिइज़्निल्लाह कह के अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद में जो पैदाइशी नाबीना होता है उसकी आंखें ठीक कर देता हूँ। और उसके बाद मैं परिंदों के अंदर, परिंदों को मिट्टी से बनाता हूँ, परिंदा बनाता हूँ मिट्टी से, और उसमें जान डालता हूँ, वो परिंदा बन जाता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने उनको अल्लाह ने उनको मददगार बनाया, तभी तो कर रहे हैं ना, वो कुरान की आयत है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास क्या रात होंगे? अल्लाह ने हर नबी को इख्तियारात दिए। अल्लाह ने हर नबी को, तो जब बनी इस्राइल की थी तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मेरे पास तो लाठी है मैं निकल जाऊंगा? उन्होंने तो कहा हमारे साथ अल्लाह है, जबकि उन्होंने लाठी के सारे जलवे देख रहे थे। नहीं, आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है। कुरान में ही आयत मौजूद है, अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा तेरे हाथ में क्या है? फरमाया असा,
اور موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس عصا سے میں پتھر میں مار کے پانی پیدا کر دیتا ہوں، اس عصا سے میں اژدہا بنا دیتا ہوں، اور اس عصا سے میں جو چاہے وہ کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اس عصا کو دریا پہ مار۔ میں یوں کہہ رہا ہوں آپ سے، جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بولا کہ اے موسیٰ آپ نے مروا دیا، یہ کہاں پھنسا دیا آپ نے پورا؟ کس کو بولا؟ فرعون جب ان کے پیچھے دوڑا تھا اور جب وہ دریائے نیل کے پاس تھے، یہ کس نے بولا تھا؟ یہ کیا بولتے ہیں، بنی یہ اس اسرائیل نے میں؟ بولا تھا، ہاں میں بتا رہا ہوں، یہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے بولا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور وہاں کچھ وقت کے لیے رک گئے تھے اور اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، تو ان لوگوں نے گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ نہیں سر، میں وہاں کی بات نہیں کر پہلے بات کر رہا ہوں۔ ارے بات سنیے نا، جب ان لوگوں نے گائے کو معبود بنا لیا تو موسیٰ علیہ السلام تشریف واپس لائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے گیا اور تم لوگوں نے یہ معبود بنا لیا، تو اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام نے ہٹا دیا اور ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی۔ تو ان میں سے جو لوگ توبہ کر کے اس طرف آ گئے وہ حق پر آئے، اور ان لوگوں نے کیا تھا جن لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی، جیسے حضور کے زمانے میں منافق اعتراض کرتے تھے۔ اچھا، پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اختیارات تھے ان کے سب کے تمام نبیوں کے پاس، اللہ نے دیے، آپ کو عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ دے سکتا ہے؟ کیوں؟ میں اس چیز کے لیے منع تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن ہر چیز کا اختیارات، میرے کہنے کا مطلب سمجھے آپ کیا بات کو گھما رہے ہیں؟ میں آپ کو کیا پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے بتا کیا رہے ہیں؟ میری بات میں نے صرف مدد کے تعلق سے بات، تو مدد کے تعلق سے اختیار دے رکھے۔ میری بات سنو، میں اتنی بات مانتا ہوں کہ ہمارے نبی سنتے ہیں، جب ان پہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، تو ہمارے نبی مدد کرنے کے قائل نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر صحابہ نے بتاؤ کوئی ایک روایت بتاؤ جو ہمارے نبی کے وصال کے بعد انہوں نے مدد مانگی۔ اچھا، یہ پہلے بیت میں سے بتا دو۔ ہاں چلو میں بتا دیتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ کس کی ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اچھا، یہ امام بخاری کے دادا ہیں، امام بخاری کے استاد۔ میں تو یوں کہہ رہا ہوں آپ سے، ان کے دادا ان کے بابا سے کیا لینا چاہیے؟ ارے یار سنیے نا بھائی، کہہ رہا ہوں آپ میرے استاد ہیں، میری بات تو سنو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ میرے استاد ہیں، میں بات کر رہا ہوں مسند حدیث پڑھ رہا ہوں نا میں، مشکات میں کہہ رہا ہوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ان کے حوالے تو یار میں آپ سے ان چیزوں کے حوالے مانگ رہا ہوں۔ بخاری سے بڑا درجہ دے رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ کو معلوم امام بخاری نے حدیث کس سے سیکھی ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ آپ کو علم ہے؟ اچھا، تو پھر ان کے جو استاد نے لکھی ہے تو پھر ان کے چھوٹے استاد نے بھی تو لکھی ہوگی نا، ان کے چیلوں نے بھی لکھی ہوگی۔ میری بات تو سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اتنے شیبہ نے لکھی ہے تو پھر ہاں سن لو حدیث سن لو پہلے۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کی دربارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط ہوا۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک پر آئے اور کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، امت ہلاک ہو رہی ہے، مدد فرمائیے۔ اللہ کے رسول سنیے، اللہ کے رسول نے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تم سیراب کیے جاؤ گے، عمر کے پاس جانا، میرا سلام کہنا اور عمر سے کہے کہ اپنے جذباتوں پہ، غصے پہ قابو رکھا کرے۔ تو حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں وہ گئے اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے پیغام بھیجا۔ تو آپ رونے لگے سن کے اور کہا اے اللہ میں تو قابو ہی رکھتا ہوں لیکن کیا کروں، جذبات میرے ہاتھ میں نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے، اب اس حدیث کو سنیے، اس حدیث کو 120 محدث نے اپنی کتابوں میں نقل کیا اور کوئی جو بڑے محدث ہیں نا، الوداع والنہایہ ابن کثیر، سنیے الوداع والنہایہ میں ابن کثیر نے اس کو میری بات سنو، یہ تو بہت سارے محدثین میں مانتا ہوں ان کی بات، میں تو جن کو تمام فقہ فالو کر رہے ہیں نا، جس کو پوری تمام فقہ ابن ابی شیبہ کو فالو نہیں کرتے، میں تو کیسی باتیں کرتے ہیں آپ امام بخاری سے بات کرو یار، مسلم سے بات کرو، ترمذی سے بات کرو، مستدرک حاکم سے بات کرو، ان سے کرو نا یار۔ اب ان کے بھائی مصنف، ایک منٹ، الحاکم سے بڑی حدیث میں تم کو دے رہا ہوں، مشکات سے بڑی دے رہا ہوں تم کو، تم کہہ رہے ہو کہ مشکات سے دو، تم مجھے بخاری سے ساری حدیثیں دے دو گے جو میں تم سے مانگوں گا، تم بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ابن شیبہ سے دے دو گے؟ اگر میں آپ کو کون مانگوں آپ سے؟ کیسی جاہلانہ باتیں کرتے ہو یار،
अब मैं एक बात बताऊं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, आपने कहा बुखारी से हदीस लो, तो जो हदीस अगर बुखारी में नहीं है तो उसको नहीं मानोगे तुम? मेरी बात सुनो, मैंने कब मना किया? मुस्लिम में नहीं है तो नहीं मानोगे? अभी तो तुम कह रहे हो। मैंने कहा बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, मिशकात, मुसनद हकीम। चलो तुम एक काम करो, नमाज पढ़ते हो? बिल्कुल। हाँ, तो नमाज के सारे अरकान, सुन्नत वाजिब और सारे अरकान और रिकात उसमें शामिल होनी चाहिए, 12, 3, मगरिब में 3, जोहर में 12, इशा में 17। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा और तुम्हारी ये मिशकात, जरा दे देना मुझे हदीस निकाल के इसमें से। नमाज कैसे पढ़ते हो तुम? मैं यूँ कह रहा हूँ आपसे कि हमारी बेस कहाँ थी और आप कहाँ लेके जा? नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि हर चीज बुखारी मुस्लिम से हमें दिखाओ, तो आपके उसूल से आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, सुनिए मेरी बात, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीसों को इनकार करने वाला 2 शख्स होता है, या तो जाहिल होता है, पहली चीज, दूसरी चीज या तो जाहिल होता है, और तीसरी चीज या तो उसे इल्म ही नहीं है कि हदीसों का बारे में रद्दी बराबर इल्म नहीं है। अच्छा अच्छा, बुखारी से पहले की हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुस्लिम से पहले की हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। आप कह रहे हैं, मेरी बात तो सुनो, बुखारी से ये चीज आपको एक हदीस बता दी जिसमें साफ लिखा है। मेरी बात सुनो, मैं कौन सी हदीस की बात कर रहा हूँ? एक ऐसी हदीस बताऊँ वहाँ जिसमें ईसा इब्न मरियम की वालिदा का, मतलब ईसा इब्न मरियम, उस हजरत मरियम का मामला है ना, तो वो कहते हैं उनसे, अरे मैं बताऊँ हदीस को शरह से पढ़िएगा। किसकी शरह से पढ़े भाई? जो जैसे बुखारी के अंदर हदीस है, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी गोया वो काफिर हो गया। तो अगर हम हदीस को डायरेक्ट ले लेंगे तो हम तो सबके ऊपर फतवा लगाना शुरू कर देंगे। तो उसकी हदीस जो मुहद्दिसीन की जमात ने की है, बात सुनिए ना भाई, जो उस हदीस की शरह जो हमें समझाई है उस हदीस के बारे में मुहद्दिसीन की जमात ने, हम उसको लेंगे ना कि उस हदीस को हम कैसे समझेंगे। तो जो हदीस आप पढ़ेंगे उस हदीस की शरह पढ़िएगा कि उसकी शरह, बुखारी की शरह आपको मालूम है किसने की है? किसने की है? नहीं, फिर आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। बुखारी की हदीस की शरह किसने की है? अच्छा, वो जो बिल्कुल सीधी सीधी बातें आ रही हैं उसकी भी शरह करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल, मतलब हर एक हदीस की मैं आपको समझा देता हूँ। ये सीधी बात है, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी गोया वो काफिर हो गया, ये टेढ़ी बात है? सीधी बात है ना? हाँ। तो फिर इसकी हदीस की शरह जब तक नहीं पढ़ोगे आप तो हर एक किसी के ऊपर फतवा लगा दोगे। तूने फजर की नमाज छोड़ दी तो काफिर हो गया, तूने जोहर की छोड़ दी तो काफिर हो गया, तूने मगरिब की छोड़ दी तो काफिर हो गया। बता रहे हैं इसकी शरह क्या है? हाँ, ये पूछो ना आप। इसकी शरह इमाम हजर अस्कलानी और इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल इसकी शरह करते हैं कि इससे मुराद ये होगा कि इसने कुफ्र वाला अमल किया, काफिरों वाला अमल किया। इससे मुराद ये नहीं होगा कि वो काफिर हो जाएगा माज़अल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शरह की। अब तुम इसकी शरह नहीं पढ़ोगे, सुनो, सूरह फातिहा का जो तर्जुमा है ना, आप तो जो बता रहे हैं तो वो तर्जुमे की पूछ रहा हूँ मैं। सूरह फातिहा का तर्जुमा मालूम है आपको? चलिए मैं सूरह फातिहा को पढ़ देता हूँ तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ। अच्छा ठीक। तो मुहद्दिस इकराम ने इसकी तफसीर की और इस पर बहस की है, उसके साथ पढ़ दूं? बस बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए। अब अगर तुमने किसी और की तारीफ कर दी तो क्या शिर्क हो जाएगा? मैं बता नहीं होगा ना? मामला क्या है? हाँ बताइए, मुहद्दिस से बताइएगा, अपनी जात से राय ना दीजिएगा। अच्छा तो ठीक है, आप मुहद्दिस हैं, आप बताएं। मैं क्यों मुहद्दिस हूँ? आपने सूरह फातिहा का नाम लिया तो आपने पढ़ी होगी ना मुहद्दिस के साथ। आप मैंने तो सब तरह की तारीफ अल्लाह की ये पढ़ा है। हर तरह की तारीफ, मिसाल के तौर पर सुनो, हर तरह की तारीफ अगर आपने ये कह दिया वाह कितना अच्छा बागीचा है, तो ये शिर्क हो जाएगा? यार शिर्क नहीं होगा ना मेरी ना वो बात। हाँ, अभी तो सुन लो ना, अभी तो आगे चलूंगा। इसकी तारीफ की है मुहद्दिस इकराम ने कि यहाँ से जाती मुराद है। अल्लाह तबारक व तआला की जात में किसी को, मतलब जैसा खूबसूरत अल्लाह है, जैसी खूबसूरत कायनात अल्लाह ने बनाई है कोई और भी बना सकता है, इस मुराद को नहीं लिया जाएगा। हाँ ये कह सकते हो कि अल्लाह ने इस बंदे को कुव्वत दी, ताकत दी, तो उसने ये खूबसूरत चीज बना दी, इसकी तारीफ करो, माशाअल्लाह क्या चीज बनाई है, माशाअल्लाह इस बंदे ने क्या अच्छी चीज बनाई, अल्लाह ने इसको ताकत दी, कुव्वत दी, ये इससे मुराद लिया जाएगा। अगर किसी जाहिल ने ये मुराद ले लिया कि सब तरह की तारीफ तो अल्लाह के लिए लिखी है, जैसे हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल की करीम के जमाने में कुछ खारजी आए और उन्होंने कहा कि अली तुम तो काफिर हो गए। तो हजरत अली ने कहा कैसे काफिर हो गया? तुमने कहा कि मैं इस कबीले का हाकिम हूँ और कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि मैं हाकिम हूँ हर चीज का।
تو حضرت علی نے کہا کہ ان کو لے جاؤ اور قتل کر دو، یہ قرآن کو خود سے سمجھتے ہیں، ان کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اچھا، تو اب یہ اس طرح کی اگر ہم تعریف کریں گے تو یہ تو جاہل بات ہو گئی، جاہلانہ حرکت ہو گئی۔ بالکل۔ اب آگے چلو، مالک یوم الدین، جو دین کا حاکم ہے، مالک ہے، ہر ایک کائنات کا، اس میں ہر چیز آ جائے گی، ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں مالک اللہ ہے تو تو بھی مالک ہے، تو اگر ہم نے اس کو اللہ جیسا مالک سمجھ لیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ اللہ مالک ہے اور اس نے تجھ کو مالک بنایا، جیسے تم مکان کے مالک ہو، تم نے زمین خرید لی، تم زمین کے مالک ہو، تم نے اپنا ایک ریسٹورینٹ بنا دیا، تم اس کے مالک ہو، تو اللہ کی عطا سے تم مالک بنے ہو، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اب آگے چلو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے ذات مراد ہے، حقیقی مددگار اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ لیکن اللہ نے جس کو مددگار بنایا، مثال کے طور پہ آپ کے دوست کے پاس لاکھوں روپے ہیں، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری مدد فرما، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مدد فرما۔ تو اتفاق سے وہ دوست تمہارے پاس آ گیا، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اس نے آپ کی مدد کر دی، تو مدد کی بندے نے، لیکن مراد کیا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ ذاتی مددگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے مدد کرنے میں، اور یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کی عطا سے مددگار بنا، اس نے تمہاری مدد کر دی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، سنیے نا بات، اسباب کہاں سے آ گیا اس میں؟ یار وہ میرے سامنے موجود ہے، میرے دوست تمہارے سامنے موجود ہے، چلو میری بات تم نے مان لی، تمہارے سامنے موجود ہے، تمہاری مدد کر دی۔ تو اب یہ بتاؤ کہ وہ اگر سعودی میں بیٹھا، تم ہندوستان میں بیٹھے ہو، تب تو تمہارے سامنے نہیں بیٹھا، وہ نہیں بیٹھا، پھر کیسے مدد کرے گا وہ؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اگر میں اس کو یہاں بیٹھا تمہاری آواز سنو ہو گیا نا سیدھے، نہیں ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تم مجھ سے بات کر رہے ہو، کتنی دور بیٹھے ہو تم؟ اللہ کروا رہا ہے یا تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو؟ ارے میں تو یوں کہہ رہا ہوں، یہ بھی ایک پہلے میری بات کا جواب دو۔ فون بھی اسبابی تو اسبابی کہہ رہا ہوں نا، اگر میں یہاں سے پکاروں اے اللہ کے رسول میری مدد کرے، تو اسباب بیچ میں فرشتے بنائے ہیں نا اللہ نے، اور اللہ کے رسول خود بھی کہہ رہے، میں ڈائریکٹ بھی سن رہا ہوں ابو داؤد شریف کی حدیث میں۔ تو تم یہ اسباب کہاں سے لے کر کے آ رہے ہو؟ اور ابھی میں تم کو اور بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے خود مدد مانگی ہے، اور خود مدد کے قائل بھی ہیں، وسیلے کی بھی قائل ہیں۔ ابھی رک جاؤ، ابھی حدیث سے پیش کروں گا تمہارے سامنے۔ اب یہاں سے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو محدثین اکرام نے، جو محدث کی جماعت نے لیا کہ حقیقی مددگار ہے، اب آگے چلیے، آگے اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر جس پر تیرا عذاب ہوا۔ اب یہ بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم 5 ٹائم دعا کر رہے ہو، اے اللہ ان کے راستے پہ چل جس کے راستے پہ تیرا انعام جس پہ نازل ہوا، تو اللہ کا انعام ہوا نبیوں پر، صحابہ پر، تابعی پر، تبع تابعی پر، محدثین کی جماعت پر، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن رزاق، عبد الرزاق، اور جتنے بھی یہ محدث کی جماعت چلے، امام حجر، امام جلال الدین سیوطی، امام بہقی، امام سیوطی، امام، یہ جتنے امام چلے آ رہے ہیں، اس پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ تو ان کی تمام کتابوں کے اندر تو مدد بھی قائل ہے اور وسیلہ بھی قائل ہے۔ بتاؤ کون سے محدث سے ثابت کروں میں؟ امام بخاری سے ثابت کر دوں، جن کی تم بخاری پڑھتے ہو؟ ادب المفرد کتاب کا نام ہے، ادب المفرد، امام بخاری کی۔ آپ لکھتے ہیں کیا کرے وہ شخص جس کا پاؤں سن ہو جائے، باپ باندھتے ہیں۔ اچھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ اچھا، اور ان سے کسی نے کہا کہ آپ ان کو پکاریں، ان کو مدد کے لیے پکارے جن کو آپ سب سے زیادہ محبت کرتے، تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا یا محمد، اور آپ کا پیر ٹھیک ہو گیا، اور ایسا ٹھیک ہوا جو دوبارہ کبھی سننا ہوا۔ اچھا، تو اس کی کوئی سند ہے آپ کے پاس، کوئی حدیث؟ سند بالکل، جب امام بخاری ادب المفرد میں لکھ رہے ہیں سنادن صحیح، تو اب امام بخاری کی بات پہ بھی تو اعتراض اٹھا دو۔ میری بات یار، ان کی کتابوں سے کیا لینا دینا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو امام بخاری کی بخاری کیوں پڑھتے ہو تم؟ تو صحیح بخاری، ایک منٹ، صحیح بخاری، ایک منٹ میری بات سنو، اگر خان نے اگر بخاری کی ہے تو اپن ان کی کتابیں تھوڑی پڑھنا دیتے ہیں۔ ارے تو امام بخاری اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں نا، اور صحیح لکھ رہے ہیں۔ یہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ سے، بخاری کی حدیث سن صحیح، ہاں بالکل ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، بالکل بالکل، ادب المفرد۔ بالکل، میں آپ کو اسکین دے دیتا ہوں، علی صاحب بھائی اسکین دیتا ہوں میں آپ کو، ان کو دے دیجیے گا۔
बिल्कुल। और दूसरी चीज सुनिए, जी भाई जी, आप कह भेज दूंगा रहे मैं। आप कह रहे इमाम बुखारी जब इसकी सनद को पहुंचा रहे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर तक, और उसके बाद वो कह रहे हैं हाजा हदीसुन सही, तो आप कह रहे हैं इमाम बुखारी की मुझे बुखारी में दिखाइए, तो इमाम बुखारी जितनी हदीसें लाए उसके पास आपके पास क्या तहकीक है सारी हदीसें सही है? अच्छा, मैं जो हदीस बताई थी आपको उसका वो अभी आपने कोई हदीस नहीं बताई, आपने सुने अभी आपने सूरह फातिहा की मुझसे तशरीह पूछी, मैं अभी पूरी तशरीह की कहाँ है, अभी तो शुरुआत की है मैंने। छोड़ो, मेरा काम हो गया उसका, मैं यूँ पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसे कैसे हो गया यार, तुम लोग अरे यार, पूछते हो बात को घुमाना चाह रहे हो यार। जो मैंने कहा, सुनो, जो मैंने मालिक तशरीह अल्लाह है, मतलब पहले हम अल्लाह से मांगे, छोड़े अल्लाह को, पहले हम इधर उधर असबाब बनाए, उनसे मांगे, फिर वो अल्लाह से दुआ करेंगे, अच्छा फिर चलिए वो ये अल्लाह से बताएं, मांगेंगे, फिर चलिए अल्लाह ये से बताएं, देगा। अच्छा ये बताएं कि आप अल्लाह से दुआ कैसे करते हैं? डायरेक्ट दुआ कैसे कैसे बताइए? यार दुआ के किस तरह से बताऊं आपको? जैसे मैं दुआ करता हूँ, जैसे मैं दुआ, हाँ सुनो, जैसे मैं दुआ करता हूँ, ए अल्लाह मेरी परेशानी को हल कर, बिल्कुल, मैं मोहताज हूँ, मेरी मोहताजी दूर कर। अच्छा, ठीक है, और मैं दर की खाक छान रहा हूँ, मेरी दर की खाक को दूर कर, मेरे से निजात अता फरमा, मुझे मेरी रहनुमाई कर। बिल्कुल। अगर मैं इस तरीके से दुआ मांगू तो मेरी दुआ कबूल होगी? क्यों नहीं होगी? हजरत उमर तो फरमा रहे नहीं होगी। किस तरह से? ये मुझसे ये देखो, अब तो मैं दे रहा हूँ सही बुखारी। बिल्कुल बताओ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक शख्स ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। अच्छा, ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने जो दुआ की है, खुदा की कसम ये दुआ तुम्हारी जमीन और आसमान में टकराती रहेगी। बुखारी जी ना? हाँ, बुखारी मुस्लिम मुस्तफा का हदीस है। मैं बिल्कुल बताऊंगा तुमको, नंबर के हदीस दे दूंगा, अभी रुक जाओ, फोन काटने के बाद सारी हदीसें पहुंचा दूंगा। नहीं ऐसे ही बता दो ना, आपको बिना फोन काटे। अब ऐसे ही यार देखो, आप लोग नंबर वाले हैं, हम लोग किताब वाले हैं। हम लोग ये किताबुल दुआ में मिलेगी आपको हदीस बुखारी में। अब हम लोग सफा देखेंगे, किताब देखेंगे, इतने तो बस की भी नहीं। तो बस आप लोग नंबर वाले ना। आपसे जो हदीस है ना, जो बिल्कुल डिफरेंस है ना, मैं उसकी सारी मौदीनों से तशरीह करवा लूंगा। आप कहोगे अहमद रजा खान से, उनकी बिल्कुल तशरीह कर लेना, बिल्कुल तशरीह कर लेना, लेकिन मुझे पढ़ने दो हदीस। तो इमाम हजरत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उमर फारूक कि खुदा की कसम तुम्हारी दुआ जमीन और आसमान पे टकराएगी, इंच भर भी ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, तो आपने फरमाया कैसे? अल्लाह के रसूल बंदे की अब हजरत उमर गलत बोल रहे हैं सही बुखारी में। रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, मैं अब हजरत उमर गलत बोल रहे हैं सही बुखारी में। क्या है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? अब हजरत उमर को कह रहे हैं खुदा की कुरान यूँ कह रहा है कि रब्बुल आलमीन में ये कह रहा है कि मैं हर बंदे की फरियाद को सुनता हूँ, उसका मतलब क्या है? चले अब मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले ये बताएं कि जो हजरत उमर फरमा रहे हैं कि तुम्हारी दुआ खुदा की कसम जमीन और आसमान पे टकराती रहेगी, इंच बराबर भी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी दुआ जब तक अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, जब तक तुम मुझ पर दुरूद ना पढ़ लो। हाँ, तो दुरूद पढ़ना अच्छी बात है ना, पढ़ो। तो ये तो तुमने बीच में हुजूर का नाम क्यों लाए, फिर डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं मांगे? अरे यार, दुआ मांगना गलत चीज है। अभी अच्छा, दुआ इबादत नहीं है? मेरी बात सुनो, दुआ इबादत है या नहीं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तो इबादत में हुजूर का नाम आ गया, नहीं की जा सकती। एक मिनट, दुआ इबादत तेरी हुजूर का नाम कैसे आ गया? मतलब मेरी बात तो सुनो यार, तो हुजूर से हुजूर का नाम जब तक नहीं लोगे, ये हुजूर का नाम अल्लाह है, गैरुल्लाह है। इबादत होती है दुआ में जब तक तुम नबी अलैहिस्सलाम का सुनो, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का नहीं, सुनो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सिर्फ हुजूर का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, उनकी आल का नाम भी है। और आगे चले और बरकत नाजिल फरमा किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जैसे बरकत नाजिल फरमाई तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, मांग रहे चीज में। अरे तो मेरे भाई, ये मदद जब तक तुम अल्लाह से मदद मांग रहे हो, अल्लाह मेरी मदद फरमा, तो जब तक हुजूर का नाम उसकी आल का नाम नहीं लोगे तो अरे लो ना, मैं तो कह रहा हूं नबियों का नाम लो, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम यही तो करते हैं। मेरी बात तो सुनो, हम यही तो करते हैं। सुनो चल रही थी कि नबी से डायरेक्ट मांगना गलत है, ये नबी से डायरेक्ट मांगने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें भेज दिया जाऊ का सूरह निसा आयत नंबर 64 में कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो तो मेरी बारगाह में नहीं, मेरे नबी की बारगाह में जाओ। अच्छा, हाँ, तो इस आयत में क्या करोगे? इस आयत से मतलब ये है कि ये जो अल्लाह वाले लोग हैं ना, किसका कॉल है ये जो तुम कर रहे हो तफरीह? अरे यार, तो फिर मेरी बात सुनो ना, आप बिना अल्लाह वाले का सुनो ना,
अरे मेरी बात तो सुनो, किसी तो कोई साहबा गया कि नबी की अरे भाई, मुबारक ए भाई, से दुआ ए भाई, करने हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ। ए भाई एक बात बताओ, तुम्हारी दीन में क्या हुज्जत है? तुम्हें कौन जानता है? तो इस आयत की जो तफसीर मुहद्दिस ने की है, सुनो मुहद्दिस ने क्या तफसीर किया इस आयत की हदीस, इसकी आयत की तफसीर में मुहद्दिस किराम, चाहे तफसीर इब्न कसीर पढ़ लेना, तफसीर वैजाबी पढ़ लेना, तफसीर जलालैन पढ़ लेना, तफसीर मदारिक पढ़ लेना, तफसीर कुर्तुबी पढ़ लेना, कोई सी भी तफसीर उठा लेना, इस आयत की तफसीर में एक हदीस कोट करते हैं कि एक अरबी हुजूर की बारगाह में आया, हजरत अली करमुल्लाह वज़ुल करीम के पास। हजरत अली करमुल्लाह वज़ुल करीम उनको अपने साथ हुजूर की खब्र मुबारक पे ले गए। उस शख्स ने कब्र मुबारक की मिट्टी उठाई, अपने सर पे रखी और कहा कि इस आयत को पढ़ा और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जानों पे जुल्म कर बैठा, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, मेरी शफाअत करिए। तो कब्र से निदा आई कि जा तेरी शफाअत हो गई। अब क्या करोगे इस तफसीर का? अच्छा, तो मतलब ये जितने मुहद्दिस हैं, किसने की तफसीर इब्न कसीर पढ़ लो, तफसीर मदारिक पढ़ लो, तफसीर जलालैन पढ़ लो, इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर बैज़ावी पढ़ लो। पीछे रहमतुल्लाह अलैह क्यों लगा रहे, रज़ी अल्लाह तआला ने क्यों नहीं लगा रहे? चलो देखो, कुरान में अल्लाह ने अपने नबियों को भी रहमतुल्लाह अलैह बोला है और कुरान में अपने रसूल के सहाबा को भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोला है। सलामती सब पर है, अलैहिस्सलाम कह दो, वलियों को भी अलैहिस्सलाम कहा गया है। तो देखो, रहमतुल्लाह अलैह का मतलब होता है अल्लाह की रहमत है उन पर, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मतलब होता है अल्लाह उनसे राजी हुआ। बिल्कुल, अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की सलामती है उन पर, तो तीनों तो चारों तो एक ही बात है ना भाई। कैसे है कि तो अल्लाह राजी है, वो अलग मामला है यार। हाँ, वो तो कैसे मामला है? तो क्या अल्लाह से राजी नहीं हुआ? काबे से राजी नहीं हुआ अल्लाह? ताबीन की आपको पता है कन्फर्म सबसे सारी राजी है अल्लाह। बिल्कुल, जो ताबई हुए, जो तबे ताबई हुए, वो अल्लाह मतलब इमाम बुखारी जो है अल्लाह की अल्लाह से राजी नहीं हुआ। नहीं हो कह रहा हूँ, सारे इमामों का कन्फर्म है क्या भाई? जिनके ऊपर उम्मत का इजमा है तो उनसे तो हमें कन्फर्म है ना। जैसे इमाम बुखारी है, इमाम मुस्लिम है, तो क्या अल्लाह इनसे राजी नहीं है? मतलब आप तो फिर कहना चाहेंगे यार कि हुजूर के हाल में सारे नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जिनके ऊपर उम्मत का इजमा है, मतलब मुहद्दिस का इजमा है कि इमाम शाफी, मालिक, इमाम हम्बल, अल्लाह ताला राजी होगा, लेकिन हमें राजी होगा। हमने अल्लाह पे झूठ क्यों बांधे? हमें पता है, हमें पता है, नहीं हमें पता है यार। मैं तो कह रहा हूँ या तो आप उनके पास जाके देखो, मैं आपको बताता हूँ, सुनो, मैं बताता हूँ। अल्लाह है हमें पता है, फरिश्ते हैं हमें पता है, अल्लाह के रसूल है हमें पता है, अल्लाह के सहाबा हमें पता है। हाँ, इनको पता ही नहीं है भाई। क्या नाम है इनका? नाम क्या था भाई? आशिक भाई। भाई अब बात को मदद से घुमा के यहाँ ले आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे, समझ नहीं आया यार। जब ये तो मेरी बात सुनो भाई, नहीं कह रहा हूँ कि आप सुनिए, तफसीर नहीं बता रहे हैं, आप सुनिए, बता तो रहे भाई, सब तो बता दिए वो। अरे शुरू से ही तो हदीस का ही वो बात करे, तफसीर का बात करे, सब तो बात करे। मैंने किसी की कॉल ही नकल नहीं किया। मेरी बात तो सुनो, अगर मेरे को किसी के कॉल नहीं मालूम है, देखो मैं मोती समझता, उनकी तस्वीरों में भी नहीं समझता, मेरे पास तो तुमने मुहद्दिस के बारे में कहा, ये नहीं पढ़ो तो नहीं। सुनो, तुमने कहा मैं मुहद्दिसीन के कॉल को भी नहीं समझता। तो इमाम बुखारी जितनी हदीस लाए, तुमको कैसे पता वो सारी हदीसें सही? किसने बताया? कह रहा हूँ आपसे, अगर मैंने कोई हदीस पढ़ी जो मुझे सीधे सीधे समझ में आ रही, फिर उसको तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं वो उसको तशरीह करेंगे और वही बेहतर है, यूँ कहना चाहते हैं। अच्छा, मतलब ये हुआ कि हदीस को तुमने ठीक से समझ लिया सीधा, तो मुझे फिर इस हदीस के बारे में समझा दो कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी गोया वो काफिर हो गया। चलो समझाओ, मैं सबको आपने उसका मतलब तो मुझे सीधे नहीं, तो कड़वा मीठा है था। मतलब जिसमें तुम फंसोगे तो मुहद्दिस का सहारा ले लोगे, और जिसमें तुम नहीं फंसोगे तो मुहद्दिस का सहारा छोड़ दोगे, फिर कहोगे मुझको मानते ही नहीं। ये तो जाहिलाना बातें हुई ना यार। मेरी बात सुनो, हजरत अल्लाह ताला वही होता है, ईसा अलैहि सलाम के टाइम पे वो यूँ कहते हैं कि संभल के चलो ईसा, दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे। इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है। हाँ वही जो भी है, आप जो तोड़ के बातें पेश कर रहे हो ना, जो तोड़ के बातें पेश कर रहे हो, जो आपको तकरीरों में रट्टा रटाया तोता बना के भेजा गया है ना, वो मत करो मेरे सामने दलील की बात करो। होंगे, मैं यूँ नहीं कह रहा आपसे, आप मेरी बात सुनिए, तो ये कहना, मेरी बात सुनिए। अगर मैं हुजूर से साबित करता हूँ, सुनिए यार, मैं हुजूर से साबित करता हूँ, क्यों लग रही है बात? अच्छा, मैंने तो ये नहीं बोला कि तमाम कायनात का मालिक अल्लाह नहीं, मैंने तो सूरह फातिहा की तशरीह कर दी। आप हकीकी मददगार अल्लाह है, कोई इख्तियारात नहीं दिए, सिर्फ हर चीज कहाँ लिखा है? ये तो ये कहाँ लिखा है?
एक आयत नहीं सुनी आपने, हमारे नबी कहते हैं कि मैं अपने तो हमारे नबी वो खुद के नफे का भी नुकसान का भी इख्तियारात नहीं अच्छा, तो आपने बुखारी की हदीस नहीं सुनी? आपने बुखारी की हदीस नहीं तो आप नहीं तो बुखारी की आपने सही बुखारी की हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह ने मुझे तमाम जहानों के खजाने दिए हैं और मैं क़यामत तक के मुनाफिकों के नाम जानता हूँ। जाहिर जिंदगी में ये देखो कैसा जाहिल आदमी है। मामले। आप सुनो, अब इस बात सुनो, अपने बुजुर्गों से करा लो, आप बात सुनो, बिल्कुल मेरे विशाल के बाद आप बात सुनो, बहस मत करो, ये बड़बड़ाओ मत। ये जो तुम जर्जिस वर्जिस की जो तकरीरें सुन के आते हो मिर्जा की, ये मेरे पास मत चलाओ, हम उसको रोज मेरी बात नहीं हो ना, मेरा अरे अब सुनो यार, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम बुखारी ठीक से पढ़ लो, तुम सुना के आते हो तकरीरें दुनिया जहां। मेरी बात सुनो जनाब, अब आप थोड़ा सा क्या आउट हो गया लाइन से। नहीं आउट नहीं, आप बदतमीजी खुद कर रहे ना, मुझे बोलने दीजिए। आप कहाँ से कहाँ भाग रहे हैं? आप हंस रहे हो, थोड़ा सा मैं हंसा, आपको बुरा लग गया? नहीं, मेरे को कहाँ बुरा लगा? आपने जो बात बोली इसको बुरा लगा कि आप मुहद्दिस को नहीं मानते, मुहद्दिस की जमात को नहीं मानते। मना करी आपने तो बोला कह रहा हूँ आपके हिसाब से मुहद्दिसीन यार ऐसे नहीं, आपके हिसाब से क्या मतलब होता है ना? फिर उसको इमाम नकल करे, इमाम तरमीज़ी की नकल करे, कोई ना एक बात बता रहे ना। नहीं तो एक बात बता, तो मैंने आपको बताया तो सही कि कितने मुहद्दिस ने उसके हदीस को नकल किया। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का तुमने इनकार कर दिया, और हदीसों का इनकार करने वाला काफिर है। बिल्कुल है ना, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीसों का इनकार करने वाला काफिर है। मैं खुल के कहता हूँ, लिखित रूप में दे दूं, फतवा दे दूं? इमाम बुखारी की फतवा लेके सुनो, इमाम बुखारी की, इमाम मुस्लिम की, मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने लिखी ना, इसको काफिर है जनाब। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की सबसे पहले हदीस का इनकार कर दिया, अलसाबाइस ने इनकार किया कि नहीं किया? मैं बताता हूँ जनाब, जी भाई सुनिए, एक मिनट सुनिए, चाहते हैं। मैं कहाँ अटका रहा हूँ? कुरान हदीस से वसीला साबित है। अभी तो मैंने बात कहा की है। मैं भी मानता हूँ इस तरह से वसीला साबित है, मेरे वसीले के खिलाफ नहीं है पॉइंट। हाँ तो आप बात को समझे मेरी, तो मैं वसीले के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। तो उनका कहना यह है कि वो डायरेक्ट हमारे नबी से कहते हैं। मैंने आपसे फोन उठाते पहले क्या कहा, सबसे पहले हमारे नबी सुनते हैं, हम उनके दरूद सलाम भेजते हैं। अरे भाई, हमारे नबी जब सुनते हैं, मेरी बात सुनो, हमारे नबी जब सुनते हैं, हमारी शफाअत करने वाले हमारे नबी हैं, अल्लाह ने उनको शफाअत करने वाला बनाया, अल्लाह ने उनको मदद करने वाला बनाया। अल्लाह ने, जैसे मिसाल के तौर पे एक बुखारी मुस्लिम की हदीस और पेश कर देता हूँ, एक सहाबी रसूल ने अपनी जान पे जुल्म किया, रोजा छोड़ दिया। अच्छा, क्या किया उन्होंने? देखो सुनो हदीस, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी जान पे जुल्म कर दिया। करें क्या किया? रोजे की हालत में बीवी से सोबत कर बैठा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, 70 रोजे रखो, कफारा अदा करो। कहा या रसूलल्लाह, एक रोजे में तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे मालूम है किसी भी चीज में कैपेबल नहीं थे वो। हाँ, अब आगे कहते हैं, एक काम करो, 70 खाना खिलाओ। तो यहाँ मदद किससे मांग रहे हो? तो ये अब वो क्या कह रहे हैं? अब सुनो, शरीयत का उसूल, अल्लाह ने क्या उसूल बनाया? उसूल सुनो, जिसने एक रोजा जानबूझ के छोड़ दिया तो वो पूरी जिंदगी अगर रोजा रखता रहे तो उस एक रोजे का कफारा अदा नहीं कर सकता। ठीक है, जानबूझ के। अब यहाँ पर जो उन्होंने जानबूझ के रोजा छोड़ा, तो अल्लाह के रसूल उनका कफारा कैसे अदा करवा रहे हैं वो देखो, इख्तियार देखो नबी का। उनकी बारगाह में, हुजूर की बारगाह में चंद खजूरें आई, तो हुजूर ने फरमाया, ये खजूर ले जा और मदीने में गरीबों को तकसीम कर दे, तेरा कफारा अदा हो गया। अब वो फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मुझसे गरीब इस मदीने में कौन है? तो फरमाया कि जा अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ इसको खा ले, तेरा कफारा अदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुनी है। अरे तो अल्लाह की शरीयत को, जैसे शरीयत जो अल्लाह ने बनाई है कि एक रोजा जिसने छोड़ा उसका गुनाह ये तय है, फिर अल्लाह के रसूल को ये इख्तियार दिया अल्लाह ने कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब आप एक सहाबी को, मैं बता रहा हूँ, सुनो, अज़ाब आ जाता है, वाजिब हो जाता है, मतलब मेशत में भी अगर उसको अज़ाब वाजिब हो जाएगा, तो कोई है ऐसा जो अल्लाह के अज़ाब को टाल सकता है? अल्लाह की, सुनो, अल्लाह के किसी बंदे ने गुनाह कबीरा कर लिया और वो नबी का गुस्ताख नहीं है, ध्यान से सुनना बात को, वो नबियों का गुस्ताख नहीं है, उसकी जुबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकला जो अबू लहब की जुबान से निकला था, अबू जहल की जुबान से निकला था, और आज की तारीख में मौलाना जमशेद भाई, अजान हो रहा है। रुको, हेलो जी भाई, अजान हो रहा है, नमाज बात करते हैं, पढ़ लेंगे। ठीक नहीं, एक बार मैं बात खत्म कर दूंगा, बात यहाँ खत्म हो रही है। ठीक 2 मिनट बस लूंगा मैं। तो उसका कफारा जो उसने गुनाह कबीरा किया, अल्लाह उसको बख्श देगा, जन्नत से निकालेगा, ठीक है, दोजख से निकालेगा और जन्नत में डालेगा, और अपने नबी को खुद हुक्म देगा कि जा
जो तुझसे मोहब्बत करता था उसको निकाल के लिया, और बिल्कुल उसके बाद अल्लाह उसको हुक्म देगा, जो मोमिनीन होंगे, जो जिनको वली कहा गया है, वो भी कहेंगे या अल्लाह हमें भी हमारे साथ के जो थे, जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, जो हमारे साथ मोहब्बत करते थे और जो हमारे साथ रोजा रखते थे, वो भी जहन्नम, तो अल्लाह उनको भी इजाजत देगा, जा उनको भी निकाल के लिया अपने साथ। अच्छा ठीक है, आप चलिए। आपने कहा, आप पहले मुझे अपना अकीदा बताएं कि जितने अंबिया दुनिया से चले गए तो क्या वो अपनी कब्र से दुनिया में बाहर आ सकते हैं रूबरू? नहीं, ये नहीं सुना मैंने, इस बारे में नहीं पढ़ा। आ सकते हैं नहीं, आप बताएं मुझे। नहीं, इस बारे में नहीं है कुछ भी। नहीं आ सकते है? नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। ये किसी से सुना आपने कि नहीं आ सकते? ये तो हाजिर नाजिर वाला मामला हो गया है। हाँ चलो अभी मैं आपको देता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज तशरीफ ले जा रहे हैं, आपने मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर रुके। जमशेद भाई आप लोग बात करें, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, ठीक है? जी। ऐसे लाइन पे। आपने देखा, आपने फरमाया कि जब मैं सुर्ख टीले पे खड़ा हुआ तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर के कितने साल पहले दुनिया से तशरीफ ले गए थे? बिल्कुल, बहुत साल पहले। कब्र कैसे महफूज रही? आपके कहने का मतलब ये कि उनको कब्र के मतलब बाहर नमाज पढ़ते हुए नजर आई हूँ। कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा। हाँ तो वो दुनिया थोड़ी है, कब्र। हाँ चले ना, अभी तो बताइए यार, अभी दुनिया भी देखो ना। तो आका अलैहिस्सलाम मस्जिदुल अक्सा पहुंचे। मस्जिदुल अक्सा में मूसा अलैहिस्सलाम को आपने अपने से पहले वहां पाया। मस्जिदुल अक्सा के ये मस्जिदुल अक्सा मेराज की बात, मस्जिदुल अक्सा, हाँ अच्छा। मस्जिदुल अक्सा। तो आका अलैहिस्सलाम जो गए थे वो गए थे बुर्राक से, और मूसा अलैहिस्सलाम जो गए थे वो तो गए थे नबूवत की रफ्तार से, और नबूवत की रफ्तार बुर्राक से बहुत तेज है। अच्छा। मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, फिर क्या देखते हैं कि तमाम अंबिया आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद आपने नमाज पढ़ाई। आप मुझे बताएंगे उस नमाज में इकामत किसने की थी? हमारे नबी ने। हमारे नबी इमाम थे। इकामत पूछ रहा हूँ आपसे। जिसको मौजिन कहते हैं, जो पीछे खड़े होकर तकबीर कहते हैं। चले ठीक है, चले बहर क्या लंबी हो जाएगी बात। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई तो क्या वो जिस्म के साथ थे अंबिया या रूह के साथ थे सिर्फ? इस बारे में नहीं पढ़ा यार मैंने जनाब। हाँ चले, अपने जिस्म मुबारक के साथ थे। अब वो नमाज जो पढ़ी वो जमीन पे पढ़ी या जमीन के अंदर पढ़ी? जमीन पे पढ़ी। ये मस्जिदुल अक्सा में? हाँ जमीन पे पढ़ी। अब देखें फिर क्या हुआ, फिर नबी अलैहिस्सलाम चले शबे मिराज तशरीफ ले गए पहले आसमान पर। मुलाकात हुई आदम अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम अभी कहाँ थे? जमीन पर। अभी कहाँ पहुंच गए? पहले आसमान पर। जी, फिर उसके बाद ऐसे करते करते आप अंबिया से मुलाकात करते 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 पहुंच गए अर्श मोहल्ला पर। अच्छा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह इससे आगे मैं नहीं जा सकता, सिदरा तक मेरी हद है, इससे आगे इंच भी बढ़ूंगा मेरे पर मुबारक जल जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ठीक है तुम रुको मैं आता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करके जब मेरे नबी वापस आए तो आपको पता है चौथे आसमान पर किसने रोका मेरे नबी को? मूसा अलैहिस्सलाम ने। क्या पूछा आपसे? ठीक से नहीं पता मुझे सर। आपने पूछा है नबी उम्मत के लिए क्या ले जाते हो? तो फरमाया 50 वक्त की नमाज। का आपकी उम्मत नहीं कर पाएगी, आप वापस जाएं, अल्लाह से कम कराएं। तो अल्लाह को तो ये पता है ना कि मेरा नबी जो है बार बार वापस आने वाला है, क्यों ना मैं एक बार में फैसला कर दूं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को 7, 8, 9 गालिबन 12 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा। अच्छा ठीक है, तो अल्लाह के रसूल को ये कहना चाहिए था ना, मूसा तो मेरी जो मदद कर रहा है तो दुनिया से रुखसत हो गया, तो असबाब में है, तो मैं तेरी मदद कैसे ले लूं? ये तो मेरे लिए शिर्क हो जाएगा। और अल्लाह शिर्क करवा रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार मदद दिलवा रहा है। चले, मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार जब कहा मेरे आका से तो आपने फरमाया कि ऐ मूसा मुझे हया आती है, मैं अब नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए तो अबू जहल ने मजाक उड़ाया
کہ ایک رات میں معراج، تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ اے ابو بکر یہ بتا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں ایک رات میں اللہ سے مل کے آیا ہوں اور پورے آسمان کا اور جنت اور دوزخ سب کچھ دیکھ کر کے آیا ہوں تو اس کو کیا کہے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو پہلے یہ بتا یہ بات بولی کس نے؟ کہا یہ تیرے نبی نے، تو اگر میرے نبی نے کہی تو حق کہی، میرے نبی نے کہی تو حق کہی۔ پھر آپ نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا واقعہ بتا رہے ہیں شب معراج کا۔ تو اب مجھے یہ بتایا اللہ نے نبیوں کو کیا اختیار دیا ہے؟ ماشاءاللہ دیکھیں، قبر میں کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد الاقصی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آسمان میں بھی گھوم رہے ہیں، چوتھے آسمان پہ، پہلے آسمان پہ، تیسرے آسمان میں اللہ نے کیا اختیار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کر رہے ہیں، ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور امت کے بارے میں یہ غیب کا علم بھی دے رہے ہیں کہ تمہاری امت نماز نہیں پڑھ پائے گی، اور آپ کہتے ہیں نبیوں کو کوئی اختیار نہیں دیا اللہ نے؟ کون سی کتاب پڑھ کے آئے ہو بھائی؟ اسے اختیارات بولتے ہیں کیا؟ نہیں، کیا پڑھ کے آئے ہو تم؟ کہاں پڑھ کے آئے ہو؟ اختیارات بولتے ہیں کیا یار جناب؟ نہیں، یہ اختیار نہیں ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں، موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ سمجھ میں آئی کہ یہ جو تمام انبیاء تھے وہ علامہ الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بولی ہے کہ سن لو میرے شاگردو، کیونکہ ان کے دور میں بہت جہالت تھی، انہوں نے ایک بات بولی تھی، سن لو میرے شاگردو، میں تو جھیل چکا، اب تمہاری باری ہے۔ اگر تمہارے پاس 100 دلیلیں ہیں اور کسی جاہل کے پاس، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جاہلوں سے بحث نہ کرنا، کسی جاہل کے پاس اگر ایک دلیل ہے تو وہ تمہاری 100 دلیلوں کو رد کرے گا، تو تم کام یہ کرنا کہ تم اس جاہل سے بات مت کرنا، تم اس کے استاد سے بات کرنا جس سے وہ سیکھ رہا ہے۔ اچھا، تو میں وہی جاننا چاہتا ہوں آپ کو سکھا کون رہا ہے؟ میں نے تو لٹل بٹ پڑھا ہے، اور میں نے جو پڑھا ہے نا وہ آپ سے مل ہی نہیں پا رہا ہے۔ مجھے ایک بات آپ یہ بتا دیں، مجھے آپ یہ بتا دیں، آپ کہہ رہے ہو میں تفسیر میں الجھا پڑا ہوں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہو تفسیر میں الجھا پڑا ہوں۔ جناب احمد تفسیر میں تو امام بخاری بھی الجھے پڑے تھے، امام بخاری نے 650 حدیثیں تفسیر سے نکالی ہیں، قرآن کی تفسیر سے۔ اتنا تو علم نہیں ہے یار، ان کی تفسیریں بتاؤ نا یار۔ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اب تو ان کی جو وہ ہے استاد ہے ان کی تفسیر اور ان کی سنو میری بات، تفسیر ابن عباس سے امام بخاری نے 650 حدیثیں نکالی ہیں اور اس کو صحیح سند میں دیا ہے بخاری، صحیح بخاری میں۔ امام مسلم نے تمام باتیں بتائیے نا، امام مسلم امام بخاری کی باتوں سے یا پھر ترمذی، مسند احمد، مشکات، انہوں سے ثابت کر کے اور یوں بتا دو کہ ہاں یہ اس کی تفسیر ہے اور یہ امام بخاری نے یہ تشریح کری ہے۔ بھائی حدیث الگ ہوتی ہے، تفسیر الگ ہوتی ہے، شرح الگ ہوتی ہے۔ حدیث کی تفسیر ہے نا، کس کی حدیث کی؟ یہ امام بخاری کی اور امام مسلم کی جو حدیث ہے نا، سیدھی سیدھی باتیں لکھ رہی ہے نا جناب، کیا آپ مان لو پکی قبر بنانا منع ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ میں آپ کو ابھی آپ قبر پہ چلے گئے، پہلے آپ کے مدد پہ، پھر مدد کا جواب دیا، آپ نے سورہ فاتحہ کی مجھ سے تشریح کروا لی، اس کا جواب دیا، پھر آپ نے مدد کے تعلق سے میں نے پوری وضاحت کی، اب آپ چلے گئے پکی قبر پہ۔ آپ جو مدد کی بات تو خود کنفیوز ہو، مدد میں انہوں نے جو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے جوڑی ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ جب اللہ کے رسول پہنچے تو اللہ کے رسول کا یہ قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس جب میں کھڑا ہوا تو قبر تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کہاں 1200-1400 سال پہلے کی بات، اس سے بھی زیادہ لمبی بات، اتنے سال سے موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، ٹھیک ہے، موجود چلی آ رہی ہے، ٹھیک۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا قبر جو ہوتی ہے، ایک صحابی رسول قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو صحابی رسول کو فرمایا اے صحابی رسول، ہے میرے صحابہ، قبر پہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، تم اس کو اذیت نہ دو، یہ تمہیں اذیت نہ دے، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو 2 قبر تھی اور دونوں میں عذاب ہو رہا تھا۔ اچھا، اللہ کے رسول نے ایک ٹہنی توڑی، ہری ٹہنی توڑی نا، ہاں، اس کو 2 پہاڑ کر دیا اور دونوں کے قبر پہ رکھ دیا، بالکل، تو کہا یا رسول اللہ اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ اچھا، تو اللہ کے رسول عذاب میں کمی کروا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے، کروا رہے ہیں، کروا رہے ہیں نا، کروا رہے ہیں، سنو کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، کس سے کروا رہے ہیں؟ اللہ سے۔
सुनो सुनो, किससे करवा रहे हैं? अल्लाह से। और इख्तियार किसने दिया? अल्लाह ने। तुम्हें इख्तियार दिया, तुम फाड़ करके रख दोगे तो तुम दावा कर दोगे कि मैंने रख दिया, इसका अजाब कम हो जाएगा? मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने अरे कह अजीब दिया जाहिल आदमी हो तो अपन खुद तुम नहीं सुनो, ये सुन्नत हो गई, कहनी रखना, कहनी रखना सुन्नत है ना। और हमारे नबी को एक मिनट आपको दिख रहा है कि एक मिनट, कहनी रखना सुन्नत हो गई ना? हाँ, मेरे नबी को फूल चढ़ाने के लिए, लेकिन फूल चढ़ा, फूल पे भी आऊंगा अभी, तुम फूल चादर सब पे आऊंगा, रुक जाओ। कहनी रखना सुन्नत हुई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये भी इख्तियार दिया है कि नबी तुम देख लो कब्र में किसकी अजाब हो रहा है। मेरे नबी को ये भी इख्तियार दिया है कि नबी तुम सुन लो उसको क्या अजाब हो रहा है। मेरे नबी को ये भी इख्तियार, सुनो ना भाई, सुनो ना भाई, क्या? तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, तो हम उनके पास जा रहे हैं ना। किनके पास जा रहे हैं? नबी के पास। अच्छा, वो हमें इनमें जाऊंगा, अल्लाह ताला, हाँ, अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कुरान में, जाओ का, जाओ कहा जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, जाओ का कहा नबी की बारगाह में, और मेरे नबी से कहो, ऐ मेरे नबी मैं गुनाह कबीरा कर बैठा, मेरा नबी अगर तुम्हारे हक में दुआ कर दे तो अल्लाह को बेहतर बख्शने वाला पाओगे। अब तुम कह रहे हो मत जाओ, तुम कह रहे हो डायरेक्ट ले लो, जब अल्लाह खुद भेज रहा है तो तुम अल्लाह से बड़े हो गए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे गुनहगार हाथ हैं, गुनहगार हाथ हैं? क्या गुनहगार हाथ है? आप तो वो उन्हीं लोगों की तरह फरमा रहे कि गुनहगार हाथ है, डायरेक्ट मत मांगो। अरे भाई, तुम्हारी तबीयत खराब हुई, तुम बीमार हुए, ठीक है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, हकीम के पास जाते हो, लेकिन सहाबा का ये अमल नहीं था। सहाबा का अमल क्या था? सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस दे रहा हूं, ये भी दे दूंगा तुमको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा मुबारक, कौन सा जुब्बा? जो मेरे नबी के तन से सिर्फ टच हुआ, एक सहाबिया के पास था। मदीने में जब कोई बीमार होता था तो वो सहाबिया के पास जाता था, और वो सहाबिया पानी में डुबा के उस जुब्बे को, और उनको पानी पिला देती थी, वो शिफा पा जाता था। अच्छा, यहाँ तो जुब्बे से मदद ली जा रही है। और सुनिए, एक हुजूर का दाढ़ी मुबारक। क्या नाम है जनाब आपका? नाम चले ठीक है भाई, मेरा नाम जमशेद अली कादरी है। जमशेद अली कादरी, दिल्ली से बाबा जी। जमशेद अली कादरी, आपकी रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे 30% बातें सही लग रही है, समझ में आ रही है, बाकी बातें नहीं। मैंने क्या बोला आपको? अल्लामा अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना, अगर जाहिल बिल्कुल वाला मामला है ना, वो मुझे समझ में आ रहा है आपका। मैं भी आपको जो कुछ बता रहा हूँ ना, तशरीह मांग रहे हैं, आप एक अनपढ़ से तशरीह मांग रहे चीज, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता नहीं। मैंने आपसे कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए, आप पेशे से क्या है? पेशे से क्या? मुसलमान हो यार? नहीं, पेशे क्या काम करते हैं? कारोबार क्या आपका? मैं फर्नीचर का काम करते हो। अब अगर एक बात बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि हर एक 100 साल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा कि जो दीन को निखार देगा। तो मुहद्दिसीन ने इसकी शरह करते हुए ये कहा कि उसको मुहद्दिस कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पेश की थी, असहाबुल हदीस, और इस हदीस की शरह इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने की, और उन्होंने ये लिखा असहाबुल हदीस से मुराद मुहद्दिस का गिरोह है। अच्छा। वो मुहद्दिस जो हदीस के जानकार है, जिनको हदीस सनद मतन के याद होती है। अब ये जो मुहद्दिस का गिरोह बनाया अल्लाह के रसूल ने, जो हमें आगाह किया, ठीक। अब आप करते हो फर्नीचर का काम, एक शख्स आपके पास आता है, एक फर्नीचर की लकड़ी लेकर के आता है, और वो कहता है भाई देखो मैंने इसमें कील ठोक दी, ठीक है, सही ठुक गई ना, हाँ, तो मैं भी फर्नीचर का कारीगर बन गया। आप उसको कारीगर मानोगे? नहीं। आप उसको क्या कहोगे? आप उसको ये कहोगे कि भाई, कहा था आपको बता रहा हूँ, बात सुनिए, तशरीह करनी चाहिए थी, कर दिया ना मैंने, तो आपने तो हदीस बताई नहीं। मेरी बात सुनो, आपके वो जो बुजुर्ग है ना, उन्होंने, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, एक होता है यार, उनसे तशरीह करवा रहे हैं यार। सुनो, एक होता है सीखने वाला, एक होता है सिखाने वाला। जो सीखने वाला होता है ना, वो सामने आकर के सीखना, मतलब उसके सीखने का जो अंदाज होता है वो अलग होता है, और एक होता है सिखाने वाला। अगर कोई किसी से बहस करे तो वो सिखाने वाला नहीं होता, वो सीखने वाला नहीं होता, वो सिखाने वाला। इंशाअल्लाह आपसे बात में मुझे आप बताएं, एक मिनट, हाँ बस एक मिनट रुक जाए, मुझे ये बताएं कि एक इंजीनियर है, अब इंजीनियर की किताबें पढ़ के कोर्स करके आए आपके पास, और आपको एक किताब पकड़ा दे इंजीनियर की, तो आप उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद उससे सवाल करें भाई ये जो वायर का तरीका लिखा हुआ है
ये तो ऐसे लगेगा, ये तो ऐसे लगेगा। तो इंजीनियर कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, मैं इंजीनियरिंग पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है कि ये कहाँ से कहाँ जाएगा, तुम मुझे सिखा रहे हो। तो जो मदरसे में 18 साल 20 साल पढ़ के मुफ्ती बनते हैं, जो मदरसे में 8 साल 9 साल पढ़ के आलिम बनते हैं, जो मदरसे में 50 साल 60 साल बन के उलमा बनते हैं, उनसे मैं सीखूंगा, या तुम जो हदीस मुझे दोगे और जो तुम बताओगे मैं तुमसे सीखूंगा? मैंने आपको हदीस थोड़ी सी। और आप कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं कि आप कैसे कैसे नाम ले रहे मुझे पता नहीं। जब आप इस फील्ड में घुसेंगे, मदरसे जाएंगे, किताबें देखेंगे, उलमा से तालीम हासिल करेंगे, तो ये सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है जमशेद भाई, मुझे इस तरह का अकीदा नहीं रखना है, खुदा की कसम मुझे नहीं रखना है। मेरे को ये मानना है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मेरी बात बताता हूँ। आप हाजिर मानो, ताजिर मानो, नाजिर मानो, कुछ भी मानो, मुझे इन चीजों से इख्तिलाफ नहीं है। बस मैं ये जानता हूँ कि रब्बुल आलमीन, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसके जैसा कोई नहीं है, उसने अपने हमसर नहीं बनाया और तमाम मखलूक़ात का मालिक है। मैं इन चीजों में बेस कर रहा हूँ। सुनो अल्लाह तबारक व तआला हर कायनात का मालिक है, देने वाली जात वही है, जिंदा करने वाला, मारने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। उसके पहले बात सुनो, हर एक चीज का पालने वाला वो है, ये हमारा अकीदा हो गया। लेकिन जब इलाही खुदाए अपनी जुबान से अल्लाह तबारक व तआला अपने खुद कलाम में ये इरशाद फरमा दे कि भाई देखो मैं तो हूँ, मुझे तो तुम मान रहे हो, लेकिन मैंने इसको भी मददगार बनाया। अच्छा ठीक है, एक बात ये मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कि इख्तियारात दिए हुए हैं ना। हाँ तो अब एक छोटी सी बात, मैं एक छोटी सी बात आपको एक चीज का जवाब दे दो मुझे, आप तो हर तरह के इख्तियारात दिए क्या? बोलो हर चीज के इख्तियारात दिए क्या हमारे नबी? बोलो। जब मेरे नबी ने ये कह दिया, सुनो, जब मेरे नबी ने ये कह दिया कि मुझे तमाम जहानों की कुंजी अता की गई है, बुखारी की हदीस, ठीक है, और मुझे और दूसरी हदीस में कह दिया तमाम जहानों के खजाने अता किए गए, खुदा की कसम मैं यहाँ से अपने हौज को देख रहा हूँ। हौज कौसर कहाँ है? मैं अपने हौज को देख रहा हूँ। अच्छा। और मुझे तमाम जहानों की कुंजी, और उसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरे हाथ की हथेली। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, हर चीज का इख्तियारात हाँ बोलना है या ना बोलना है, आपको यूँ पूछ रहा हूँ मैं। देखो, हर एक चीज का इख्तियार दिया अल्लाह ने दिया, क्योंकि अल्लाह ने खुद इरशाद फरमा दिया कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो तो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे नबी हमें हिदायत भी दे सकते हैं क्या? नहीं, हमारे नबी हमें हिदायत, जब तक मेरे नबी के किसी भी शख्स के जुमले या किसी भी शख्स के जो अल्फाज हैं वो नबी के खिलाफ नहीं हुए। जैसे मिसाल के तौर पर बताता हूँ, अबू लहब अभी दुनिया में मौजूद है। अच्छा। अभी मरा नहीं है। उसकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की तब्बत यदा। अच्छा। और कहा कि जल्द ये और इसकी बीवी के गले में जहन्नम की रस्सी डाली जाएगी। अच्छा। तो अभी तो वो जिंदा था, तौबा कर सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने ऐलान कर दिया उसकी मुनाफिकत का, उसकी काफिर होने का ऐलान कर दिया। हाँ अभी बता रहा हूँ। फिर अबू लहब ने क्या किया था? सिर्फ इतना सा काम किया था कि मेरे नबी की रास्ते पर उसने आग जलाई थी। अच्छा। अजियत पहुंचाने की कोशिश की थी। अच्छा। अबू जहल का भी इनकार किया। अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान मुबारक से कहा कि तू काफिर है। अच्छा। और अबू जहल का माना पता है क्या होता है? हाँ, उसका नाम अबू जहल बाद में पड़ा था। अबू लहब नहीं, अबू जहल का नाम अबू जहल बाद में पड़ा था। ये नाम किसने रखा था? मेरे नबी ने उसको अबू जहल कहा था। उसका मतलब होता है जाहिलों का बाप। उसका नाम कुछ और था पहले। हाँ, किसी का बाप था, वो बहुत जाहिलों का बाप वाले होते हैं। अबू जहल का माना, अब देखो, अबू जहल हाथों में कंकरी लेके आया और कहा अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरे हाथों में क्या है। तो मेरे नबी ने कहा मुझसे क्या पूछता, जो तेरे हाथ में उससे पूछ। तो अबू जहल ने पूछा कि कंकर ये बता सामने कौन है, ये कौन है? तो कंकर ने कलमा पढ़ लिया। अब ये बताओ कि जो पत्थर मुट्ठी के अंदर था ये तो छुपा हुआ था ना। तो पत्थर को कैसे मालूम कि सामने मेरे नबी है जबकि वो छुपा हुआ है मुट्ठी के अंदर? यार अल्लाह ने सुनो अब अल्लाह ने करो, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। बेशक हमारे रहमतुल आलमीन, इससे बड़ी रब्बुल आलमीन के बाद हमारे नबी की शान। और क्या सुनना चाहोगे मुझसे? मैं इन चीजों के खिलाफ थोड़ी जा रहा हूँ। मैं तो ये पूछा हूँ, हिदायत दे सकते हैं क्या? मेरे नबी ने बहुतों को हिदायत दी है।
और अल्लाह ने कह दिया कि हिदायत देना मेरी जिम्मेदारी होगी है। ना। सुनो सुनो सुनो, अल्लाह ने कहा हिदायत देना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, हिदायत देना मेरा काम है, अच्छा, तुम सिर्फ पहुंचा दो। तो अल्लाह ताला ये देखता है कि मेरे नबी ये पहुंचाने का काम मेरे नबी का करते हैं, नहीं, फरिश्ते ने आपको सिखाया तो क्या? करते हैं ना, फरिश्ते ने पहुंचाया क्या आपको? मेरी बात तो सुनो, फरिश्ते भी करते हैं ना। आपके पास कौन सा फरिश्ता आया था? अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपके पास नबी आए क्या? मेरे पास तो नबी से होते हुए उलमा आए। अच्छा, नबी से साहबी आए, साहबी से ताबई, बहुत फिर मेरे पास आलिम आए। ये आप जो सीधी बात पूछी ना आपने, उसका जवाब नहीं दिया। मैंने आपको जवाब इसलिए दिया, सुनो आप कह रहे हमारे नबी को हर चीज का इल्म था। हाँ, मुझे कयामत कब है? आप सुनो, हमारे नबी ने हर एक चीज बताइए। अल्लाह के रसूल को हिदायत, अल्लाह ने ये फरमाया हिदायत मेरे दिल में, तुम बात को पहुंचा दो, क्योंकि अल्लाह ताला इम्तिहान लेगा ना बाबू। अल्लाह ताला ने हिदायत अपने जिम्मे इसलिए रखी है कि अल्लाह देखता है ना कौन मेरे नबी का गुस्ताख है, कौन नहीं। जैसे सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, गुस्ताखी वाली तो बात कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि वो हिदायत भी दे देते हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? अरे भाई, हिदायत दो तरीके की होती है, हिदायत दो तरीके की होती है। अच्छा, हाँ, दो तरीके मैं बताता हूँ। अल्लाह ने ईमान दे दिया, अल्लाह ने ईमान दे दिया, ठीक है। अच्छा, मेरे नबी ने गुनाह से बचाया, मेरे नबी ने गुनाह से बचाया। गुनाह से हमारे माँ बाप भी बचाते हैं। नहीं, अच्छा, मतलब वो हिदायत नहीं होती। साहबा को बचाया, सुनो मेरी बात सुनो, मेरे नबी ने गुनाह करने से बचाया साहबा को। अच्छा, अगर किसी को अल्लाह ताला हिदायत दे दे वो गुनाह से ना बचे, गुनाह करता जाए, गुनाह कबीरा करता जाए, कहाँ जाएगा वो? जहन्नम में। हाँ, तो आपने शायद ये नहीं पूछा, ये नहीं सुना आपने आला हज़रत ने जो शेर लिखा है, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, नहीं सुना आपने? अच्छा, इसका मतलब अगर इसकी तफसीर पढ़ने चलोगे, अल्लाह ताला ने उसके कल्ब में ईमान की दौलत डाल दी, उसको हिदायत दे दी, मुसलमान बना दिया। लेकिन मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला का अगर इख्तियार होता, कोई गैर मुस्लिम आपसे ये सवाल कर ले कि भाई तुम ये कहते हो हिदायत देना अल्लाह का काम है, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने शैतान को हिदायत क्यों नहीं दी, आदम को सजदा क्यों नहीं कराया? क्या जवाब दोगे? अच्छा, तो इसके लिए तो आप हमारे नबी के लिए भी तो बोल सकते हो ना ये बात। अरे तो ये सवाल ही हिंदुआनी है ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई गैर मुस्लिम आपसे सवाल करे कि भाई तुम ये बताओ, तुम कहते हो हर चीज पे कादिर है अल्लाह, और अल्लाह ने आदम को बनाया, कुरान में अल्लाह ने सबसे सजदा करवाया सारे फरिश्तों पे, तो अल्लाह अगर सब चीज पे इख्तियार रखने वाला था तो इब्लीस से सजदा क्यों नहीं करा पाया अल्लाह? क्या जवाब दोगे इसका आप? जिस तरह से अबू लहब से नहीं करा उस तरह से इब्लीस से नहीं करवा। ना, ये जवाब नहीं है उसका। मैं बताता हूँ ना आपको, दुनिया ना, और उन्होंने तकब्बुर किया था। ना, सुनो मैं बता रहा हूँ, ये जवाब नहीं है इसका। जवाब ये है अल्लाह अलीमुल गैब है। अगर अल्लाह शैतान को दुनिया में पैदा ना करता तो फिर आजमाइश कहाँ रहती है आदमी की? जैसे मैं कह रहा हूँ दुनिया को लाना था ना। अरे तो नहीं, आपने नहीं कहा ना, मेरी बात सुने। जैसे मिसाल के तौर पे आप एग्जाम लेते हैं, आप एग्जाम देने जाते हैं, तो अगर मास्टर चाहे, प्रिंसिपल चाहे तो सबको पास कर दे, लेकिन वो शख्स कहाँ जाएगा बेचारा जो रात भर पढ़ करके उस एग्जाम की तैयारी करके तो जाती हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए अल्लाह चाहे तो सबको माफ कर दे। तो शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कि मुझे उस वक्त की मोहलत दे दे जब तक तू कयामत नाज़िल करेगा। तो शैतान को भी ये पता था कयामत आएगी, अभी दुनिया बनी भी नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी, लेकिन अल्लाह ने एक चीज बोला कि तू मेरे मुकर्रब बंदों को बहका नहीं पाएगा। अच्छा, कौन है वो मुकर्रब बंदे? जो नेक लोग हैं। हाँ, तो नेक लोग है ना, तो नेक लोगों की तमाम किताबों के अंदर वसीला मदद मौजूद है। मैंने कब मना किया आपसे वसीला? अब यहाँ बात खत्म करो तो यार, मेरी बात खत्म करो, आपकी प्रॉब्लम। चलो मगरिब का टाइम निकल क्या है, सब जगह ढोक देने पे मजबूर कर रहे हैं लोगों को। मैंने आपको वजाहत कर दी। क्या है, नबूवत के रास्ते खोलना चाहते हैं, सब जगह पे इधर आप वलियों के साथ भी ये सब। एक बात बताता हूँ, वली भी हमारे, मेरी बात तो सुनो, वली भी हमारे हैं, ताबई भी हमारे हैं, तबे ताबई भी हमारे हैं। अल्लाह ने इन सबको छोड़ने के लिए मना किया क्योंकि अल्लाह के रसूल की बुखारी। अरे छोड़ने का मतलब ये नहीं है आप उनकी वो नहीं, अल्लाह ने बोला ना मांगो, मांग ले। अल्लाह ने बोला मांगो, मददगार है वो तुम्हारे, मैंने बनाया उनको मददगार।
जैसे मिसाल के तौर पे जमशेद भाई, आपको ये एक तो शोरूम बनाया, जिंदगी की बात थी ना, मैं आपसे पूछ रहा मददगार हूँ, वाले मामले तो। अरे सुनो सुनो सुनो, अच्छा फिर एक शोरूम बनाया, अरे सुनो सुनो, बताओ कौन है वो जो बेकरार की दुआ को कबूल करता है जब उससे दुआ करता है, इसका मतलब बता दो आप तो मुझे। दुआ इबादत है ना? हाँ हाँ, अब बेकरार से मुराद कौन है? एक मिनट रुको, पानी पी लो। बेकरार से मुराद कौन है? वालेकुम भाई। हाँ भाई, हेलो, बेकरार हाँ, से मुराद कौन है? बेकरार से मतलब, बेकरार से मतलब ठीक। अरे यार, जब तुमको कुरान की आयतों के बारे में नहीं मालूम क्यों बहस करते हो? क्या यार आशिक भाई, यहाँ से मुझे तशरीह यहाँ से बता सुनो सकते हैं ना, सुनो, आला तुम हज़रत की आयत लेकर तशरीह के आ बता दें गए। आप मुझे, मैं आला हजरत की क्यों तशरीह बताऊंगा? मैं जलालैन शरीफ खोलता हूँ, सुनो। आप यहाँ तो से आला हज़रत की बताएं। बेकरार से सुनो, भाई अगर आप यहाँ आला से हज़रत की बेकरार तफसीर से, मानोगे तो वो बताएं आपको। नहीं नहीं, सुनो सुनो, बेकरार से मुराद आला हज़रत ने तफसीर नहीं करी है कुरान की। सुनो, बेकरार से मुराद वो है कि जब तुम अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह की इबादत करते हो ना, अल्लाह की इबादत करते हो तो मैं बेकरार हूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ, नमाज में सुकून मिलता है, तो मैं अल्लाह के रूबरू खड़ा हूँ। तो उसके बीच में आपको पता है शिरके खफी, शिरके जली, शिरके अकबर और शिरके असगर, ये 4 कैटेगरी होती है शिरक की। शिरके खफी की तारीफ मालूम है क्या है? नहीं मालूम? शिरके खफी क्या होता है? सुनो, शिरके खफी उसको कहते हैं कि अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो और तुम्हारे आजू बाजू में कोई शख्स मौजूद है और तुम उसको दिखाने के लिए अच्छी तरीके से नमाज पढ़ रहे हो, उसको दिखाने के लिए, ये शिरके खफी में आता है। समझ गया मैं, सजदे को लंबा करना इस तरह से, किसी भी तरीके से, जैसे अच्छे तरीके से नमाज पढ़ रहे हो कि वो शख्स देख के मुझसे इंप्रेस हो जाए कि मैं देखो कितनी अच्छी नमाज पढ़ रहा हूँ, तो उसको दिखाने के लिए ये शिरके खफी में आ गया। तो अल्लाह की इबादत में अगर आपने किसी और को शरीक कर लिया, जैसे पड़ोसी बैठा है और अरे ये देख रहा है मुझे नमाज पढ़ते हुए, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, साला मेरा मजाक बताया मुझे। एक मिनट रुको, सुनो, तो अब मैं बेचैन हूँ। बेचैन कैसे हूँ? मेरे ऊपर कोई ऐसा जुल्म हो गया, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे एकदम बेचैनी हो रही है, बहुत तड़प हो रही है, ठीक है ना? तो अब मैं बेबस हो गया एकदम, तो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मगरिब की नमाज पढ़ रहा हूँ और मैं बिल्कुल बेबसी की हालत में हूँ, ठीक है, और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला उसके बारे में वो फरमा रहा है कि कौन है जो बेबस की सदा को सुने। अब तुम जब दुआ करोगे तो हजरत उमर फरमा रहे हैं कि तुम्हें दुआ में नबी अलैहिस्सलाम का नाम लाना है, उनकी आल का नाम लाना है, तब अल्लाह दुआ कबूल करेगा। अरे आप मुताजी में डाल दो यार, जब अब मुताजी में क्या डाल रहे हो यार? तुम कुरान को समझते नहीं हो, आ जाते हो उठ करके बस एक आयत पढ़ी, एक ऐसी मेरे पास आया, सुनो, मुताजी में डाल रहे आप लोगों को, क्या इधर उधर डोप देने की तकलीफ में मुताजी में डालता हूं। ये हदीस कुरान क्या है? ये कुरान इतना हदीस सुनाने, इतना कुरान सुनाने, अभी भी आप कह रहे हैं कि इधर उधर डोज दे रहे हैं, क्या यार आशिक भाई? सुनो अल्ताफ भाई, जब हजरत उमर फारूक फरमा रहे हैं, कौन? हुजूर के खलीफा, जमशेद भाई तो फरमा नहीं रहे, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं। कौन से खलीफा? जिस खलीफा के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, वो फरमा रहे हैं कि तुम्हारी दुआ इंच बराबर भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती जब तक तुम मेरे नबी पर दुरूद ना पढ़ दो। तो बेचैनी का सबब, आप सुनो, इस पर एक शेर लिखा था, बेचैनी का सबब, और जब ना लगे, अरे सुनो ना यार, जब ना लगे, सुनो, मैं शायरी नहीं बता रहा, शायरी भी जो है कुरान हदीस से निकलती है। जब कहीं ना लगे दिल तेरा, अच्छा, जब कहीं ना लगे दिल तेरा तो मेरे नबी की महफिल सजा लिया करो और लब पर दुरूद सजा लिया करो, लब पर दुरूद सजा लिया करो। क्यों सजा लिया करो? क्यों सजा लिया करो यार? सुन लो, ये शायरी नहीं है, सुन लो, क्यों सजा लिया करो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हर वक्त मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, ईमान वालों तुम भी पढ़ा करो। बिल्कुल सही बात। तो भाई हर चीज का देखो, अब अल्लाह ताला क्या फरमाता है, तुम्हें कारोबार में तरक्की चाहिए, दुरूद पढ़ो। तुम्हें बच्चे में बरकत चाहिए, दुरूद पढ़ो। अच्छा। तुम घर से निकले हो, कदम कदम पे दुरूद पढ़ो। तुम घर में दाखिल हो रहे हो, कदम कदम पे दुरूद पढ़ो। उठो, दुरूद पढ़ना तो सवाब, तो उसमें बुराई क्या है? अब ये बातें क्यों बता रहे? दुरूद अल्लाह है, गैरुल्लाह है? अरे यार, तो इनका जैसा अल्लाह देगा ना, नहीं। हाँ, अब आ गए तुम लाइन पे। तो ये अगर अल्लाह ने दिया ना हमको, तो तुम तो कह रहे हो कि हम किसी को मदद के लिए नहीं पुकार रहे हैं भाई, हम लोग से करेंगे तब हम लोग कर रहे हैं। मेरी कहने का मतलब ये है कि हमारे नबी बेशक उनकी सबसे ऊंची शान है,
अल्लाह ताला के पास, लेकिन अच्छा, हम उसकी एक इबादत तो नहीं कर सकते ना। इबादत को कौन कह रहा तुम? इबादत कौन कह रहा है करने के लिए भाई? दुआ मांग रहे हो यार, आप उनसे दुआ मांग रहे हो। तो हमने थोड़ी मांगी है, अल्लाह खुद कह रहा है भाई कि अल्लाह तुम ताला अपनी कह रहा है जानों पे जब जुल्म तुम करो। अपनी जांगों पे जुल्म करो तो मेरे नबी की बारगाह में आओ, वो सिफारिश करेंगे तब वो माफ करेंगे। अल्लाह ताला तो खुद कह रहा है। उनकी बारगाह में बताओ। चलिए आप बता दें। अच्छा सुनो, एक आपको दुनियावी तरीके से समझाता हूँ। ये बता, एक शोरूम बनाया एक शख्स ने, और शोरूम बहुत अच्छा बनाया, माशाल्लाह खूबसूरत बनाया, और उसमें आपको रखा, और आपको बहुत अपना पसंदीदा दोस्त बना लिया उसने, बंदे ने, ठीक है। और उसने शोरूम के अंदर हर एक चीज जहां जहां रखी है, जैसे जैसे रखी है, आपको दिखा दिया, ठीक है। और वो शख्स वहां से जाके आपको ये कहता है, देखो ये शोरूम के मालिक मैंने तुमको बना दिया, ये हर एक चीज के मालिक तुम हो, तुम जिसको चाहे फ्री दे दो, जिससे चाहे पैसा ले लो, ठीक है। अब तुम इसको संभालो, मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे पास आना। अच्छा, वो चला गया, ठीक है। अब आप बैठे हैं, आपके पास कोई शख्स आया, भाई ये साबुन दे दो, आपने उसको साबुन दे दिया। अब आपके ऊपर मर्जी है पैसा लो या मत लो, अच्छा, आपने ले लिया पैसा, ठीक है। अब एक कोई शख्स आया, कहा कि ये भाई, हाँ आपके वो सेठ है ना, दोस्त है, हाँ आपके वो सेठ मेरे दोस्त, आपके दोस्त हैं, तो उनसे कह के मुझे 5 लाख रुपए दिलवा दो, मुझे बहुत जरूरत है। अच्छा, अब आपने फोन किया अपने मालिक को कि मालिक साहब ऐसे से बात है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, और आपकी बात को वो टाल नहीं सकते, उन्होंने 5 लाख रुपए आपको दे दिया, आपने उसकी मदद कर दी। अच्छा, तो ये दुनिया जो है ना, सुनो, अरे भाई सुनो, दुनिया भी सुनो, अभी बता रहा हूँ ना, सुनो, ये जो दुनिया है ना, जो अल्लाह ने दुनिया बनाई, अल्लाह ने दुनिया बनाई ना, ये उसकी कुदरत का एक अदना जर्रा भी नहीं है, बिल्कुल। और इस तमाम दुनिया कायनात का मालिक अपने हबीब को बना दिया उन्होंने, अच्छा, अल्लाह ने, और ये कह दिया, ए नबी मैंने तुमको सारे जहानों की कुंजियां अता कर दी, और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, और वो सब कुछ, मतलब रहमान ने कुरान सिखा दिया अपने नबी को, वो सब कुछ सिखा दिया। और कुरान में हर एक चीज का इल्म है, खुश का, तर्क का, जमीन के नीचे का, आसमान का, हर एक चीज का इल्म है, समंदर, पहाड़, चरिंद, परिंद, सब चीज का इल्म है कुरान के अंदर। मतलब अल्लाह फरमा रहा है, आपके कहने का मतलब ये कि हम नबी से भी मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। अच्छा, तो साहबा ने मांगा, साहबा ने मांगा कि आप नबी से भी मांग लो। हाँ, बता दो एक। अभी इतनी देर से जो मैं तुम्हें आयत पेश कर रहा हूँ जाऊ का, ये क्या है भाई यार? अरे भाई आप अच्छा, बात को दूसरी घुमा चीज रहे हैं। मैं आपसे मांगने की बात कर रहा हूँ कि ये सीधी सीधी आयत हो ना कि आपके पास, कि आप हमारे नबी से मांग लिया करो, अगर आपके घर में कुछ खत्म हो रहा है, अच्छा, कोई मुसीबत हो तो आप हमारे नबी से मांग सकते हो। अच्छा, अगर ऐसी कोई बात है ना तो वो बताओ। अच्छा, ये बातें को मत घुमाओ आप कि उनकी बात वगैरह वगैरह, वो तो जाना ही है, उसमें मना कौन करता है? चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह इस्मा पालना, ये पढ़ा है तुमने कहीं? नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा कभी। तो इसका माना क्या मालूम है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, मेरे कौन से ऐसे हाल है जिससे आप वाकिफ नहीं हो? अच्छा, हाँ, यार अच्छा ये मैंने थोड़ी पढ़ा भाई, साहबा ने पढ़ा यार तुम, यार अल्फा भाई, इनको तुम मदरसे में तालीम दिलवाओ यार। भाई इंस्टाग्राम पे ये मिला है मुझे, वहाँ कमेंट पे लिख रहे थे कि रसूलुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, तब हम इनसे बोलो इंस्टाग्राम के मुकल्लिद ना बने, जाए मदरसे में मकतब में तालीम ले। नहीं कह रहा हूँ जमशेद भाई, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से दो माबूद बनाए फिर है लोगों ने। मैं वसीले के खिलाफ नहीं, मैं वसीले के खिलाफ हूँ, लेकिन आपकी इन्हीं बातों की वजह से दो माबूद बने पड़े हैं। अच्छा तुम एक बार बताओ, बुखारी शरीफ में हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हर नबियों का कोई ना कोई मददगार था, मेरा मददगार जिब्राइल है। अच्छा, तो अब क्या बोलोगे नबी इस्लाम को? जिब्राइल, उसमें बुराई क्या है? एक बात बताओ मुझे। मतलब यार मेरी बात सुनो, जाहिर जो होते हैं ना उनसे बुराई नहीं है मदद में। एक तो मोमिन भी मोमिन की मदद करता है, मैं इस बात के लिए मना कर रहा हूँ। क्या तो फरिश्ते मदद करते हैं? अल्लाह के हुक्म। हाँ, तो अभी इतनी देर से मैं क्या पहाड़, तो हम लोग भी तो वही कह रहे हैं भाई, अल्लाह की अता से ही मदद करते हैं ना। वो आपके अच्छा चलो आपको दिखेंगे अभी। यार एक चीज और याद आ गई, आपके कंधे पे 2 फरिश्ते हैं, एक आपकी नेकी लिखता है
और एक आपकी बदी लिखता है। तो अल्लाह तो आपको देख रहा है ना, बिल्कुल। अल्लाह हर चीज जान रहा है, तो फिर ये लिखने की जरूरत क्या पड़ी? अच्छा, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं इस चीज पे? ये बताना चाह रहा हूँ अल्लाह ने फरिश्तों को भी मददगार बनाया। ये फरिश्ता तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाह इसने जो ये नेकी की थी मैंने लिख लिया था। अब एक और हदीस मुझे याद आ गई, सुनो। मैं बताऊँ आप क्या सिफारिश के पीछे पड़े हो? नहीं, नबी से मोहब्बत इसलिए करते हो कि सिफारिश कराएगी हमारी? नहीं, अब मैं एक हदीस मुझे याद आ गई। बात ये है क्या भाई देखो, हम भाई अब अपनी मंतिक लगा ले रहे हैं आशिक भाई, अपना सोच ले रहे हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। हमको मालूम है अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या बेहतर किया है, हमको मालूम है। ठीक है, अब सुनिए, एक हदीस मुझे और याद आ गई। ये निसाई शरीफ की हदीस है। रोजे क़यामत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम आवाज मारेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम दौड़ करके उनके पास तशरीफ लाएंगे और कहेंगे, ए मेरे बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? कहा कि फरिश्ते आपके एक उम्मती को ले जा रहे हैं जहन्नम की तरफ। अल्लाह के रसूल दौड़ के जाएंगे, फरिश्तों को रोकेंगे कि कहाँ ले जा रहे हो? तो जहन्नम में। तो मीजान हो गया? हाँ। नामा अमाल तुल गए? तो हाँ तुल गए। क्या है? तो उसमें बदी के ज्यादा है, नेकी कम है। तो कहा दोबारा से तोलो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुख को आसमान की तरफ अर्श पर करेंगे और कहेंगे, अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था ना। तो अल्लाह तबारक व तआला की निदा आएगी, फरिश्तों जैसा मेरा हबीब कहता है वैसा करो। दोबारा लाया जाएगा उसको मीजान पे। अल्लाह के रसूल फिर वैसे तौलाएंगे। तो जब तौलेंगे तो नेकी का पल्ला कम और बदी का पल्ला ऊपर जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम एक खत, एक चिट्ठी निकालेंगे और नेकी पे रख देंगे, तो नेकी का पल्ला बढ़ जाएगा। तो जब नेकी का पल्ला बढ़ जाएगा तो तमाम फरिश्तों की निदा आएगी, ये शहादतमंद है, इसको जन्नत ले जाओ। तो जब उसको जन्नत ले जाने लगेंगे तो वो शख्स रुकेगा और कहेगा, ए मेरे फरिश्तों जरा रोको, इस शख्स ने मेरी इतनी भलाई की है कौन, मैं पूछ तो लूं। अच्छा। तो जब वो अल्लाह के रसूल के पास आएंगे, कहेंगे, ए अल्लाह के शख्स आप कौन है जिस आपने मेरी जो इतनी मदद की? तो आप फरमाएंगे, तूने मुझे नहीं पहचाना? हाँ, मैं तेरा नबी। और ये जो कागज पे लिखा था ये वो दुरूद था जो तूने तन्हाई में एक बार मुझ पे रो करके पढ़ा था और मुझे इतना पसंद आया था, मैंने लिख करके रख लिया था। अच्छा, वो दुरूद तेरे काम आया। अच्छा। बात कुछ ऐसी है जमशेद भाई, एक मेजर डिफरेंस है अल्लाह और एक रसूल के बीच। चलो अब डायरेक्ट वो आप लोगों ने क्या खत्म कर दिया। जमशेद भाई एक सवाल हमको पूछना है, आशिक भाई से पूछने दे, इजाजत देते हैं। आशिक भाई चलिए ठीक है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। आप ये समझाना चाह रहे हैं कि मतलब जिंदगी जो कि जाहिरी जिंदगी में मदद कर सकते हैं और वफात होने के बाद नहीं कर सकते हैं। वो सारी बातें हो गई, वो मैंने रेफरेंस दे दिया उनको। तो एक हदीस चाहते हैं हम इनसे कि ये एक हदीस हमको ऐसा पेश कर दें जिसमें रसूलुल्लाह ने बोला हो, अगर मैं जिंदा हूँ तो मदद करूंगा। और मैं आपको समझाता हूँ। शिर्क हमेशा शिर्क होता है, एक चीज को ध्यान रखना। कुरान में शिर्क की 4 डेफिनेशन बताई गई है। शिर्क जली, शिर्क खफी, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। 4 कुरान हदीस में 4 शिर्क की किस्में आई हैं। ठीक है, अब तुम्हारा अगर आप शिर्क की तारीफ करेंगे, ठीक है ना, शिर्क की तारीफ की पूरी डेफिनेशन सूरह इखलास में मिल जाएगी। अब ये शिर्क खफी क्या है, शिर्क जली क्या है? अब कुरान में हराम हलाल शिर्क सब कुछ अल्लाह ने खोल के बयान कर दिया जी, सब कुछ खोल के बयान कर दिया। लेकिन किसी आयत के अंदर अगर आप सूरह मुमतहिना आयत नंबर 13 उठाएंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। ठीक है ना, ये इनकार कर बैठे किसका? आखिरत का। ठीक है, जैसे काफिर इनकार कर बैठा कब्र वालों का। जी, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है काफिरों को दोस्त ना बनाओ। तो हम तो दोस्त बना लेते हैं। हम तो अगर हम कुरान के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। हमें तो मना कर रखा है कुरान में कि भाई दोस्त ना बना, लेकिन हम दोस्त बनाते हैं। अब यहाँ से अगर ये मुराद ले लेंगे डायरेक्ट, ये कहते हैं ना मुहद्दिस के पास मत जाओ, तो इसकी शरह में हमें जाना पड़ेगा। इससे शरह से मुराद ये है काफिर को दीनी मामूलात में दोस्त ना बनाओ। अच्छा, दीनी मामूलात में ये है कि दीनी मामलात ये है कि जो वो जिसकी इबादत करे, जैसे सूरह काफिरून में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो उन काफिरों से जिनकी ये इबादत करते हैं हम उनकी इबादत नहीं कर सकते। तो उस मामले में इनको दोस्त ना बनाओ। ये कब्र वालों का इनकार कर बैठे। वो कैसे इनकार कर बैठे थे? जैसे
अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि कब्र में तुमसे सवाल होंगे, कब्र का अजाब ऐसा है, और कब्र में ऐसे जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे जो नेक होगा, और जो गुनाहगार होगा उसको जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे, तो वो उनका इनकार कर बैठे। अच्छा अच्छा सही बात समझ में? जी जी तो यहाँ से अगर हम मुराद ले लेंगे डायरेक्ट, जैसे भाई साहब कह रहे हैं ना कि जब हमारे सामने सीधी सीधी आयत है तो हम क्यों तफसीर में और मुहद्दिस के पीछे भागेंगे। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने सूरह आली इमरान आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया है कि कुरान में दो किस्म की आयत है, एक आयत मुहकम, एक आयत मुतशाबिहात, और जिसके दिल में कीना होता है, मैं कहूँगा गड़बड़ी, वो मुतशाबिहात के पीछे पड़ के गुमराह हो जाते हैं। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मुहकम क्या है, मुतशाबी क्या है, अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है, हकीकी जानकार तो अल्लाह ही है, लेकिन दिमाग वाले जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है उनको सिखा देता है। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तुम सीखो उनसे जो इल्म रखते हैं, जो इल्म वाले हैं। अल्लाह ताला क्या भेज रहा है तुमको, कहाँ भेज रहा है कि सीखो इल्म उनसे वालों जो के इल्म पास। वाले हैं, जो इल्म रखते हैं। तो अल्सा भाई, रिकॉर्डिंग है ना आपके पास? हाँ हाँ मेरे पास है। हाँ, तो मैं ये समझा रहा था, मेरा स्विच ऑफ हो गया मोबाइल बात करते करते। मैं ये समझा रहा था कि कुरान में अल्लाह ने खुद सूरह अंबिया आयत में फरमाया है कि सीखो उससे जो इल्म रखते हैं। जी जी सही है, तो इल्म वालों के पास जाओ। अब बात यहाँ पे ये है कि ये चले गए भाई। गए हाँ, बात यहाँ पे ये है कि ना 1.5 घंटा हो गया जाने इनको दीजिए, समझाते। समझ में आता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है इनको, जबरदस्ती अपने बात नहीं, देखो ऐसा है, समझ में आजकल की जो वहाबियों की घुट्टी है ना, बाल जीवन वहाबी घुट्टी, बाल जीवन मिर्जा घुट्टी, बाल जीवन देवबंदी घुट्टी, इसको जब पिला दिया जाता है ना, तो हमारे मुहद्दिस ने फरमाया है ना कि तुम जाहिल को 100 दलीलें पेश करो, उसके पास एक दलील होगी, वो रद्द करता रहेगा। समझे? बेशक 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 भाई। चले कोई नहीं, मैंने बात इसलिए इनसे इतनी की है कि हमारे बहुत सारे भाइयों की इस्लाह होगी, इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे इंशाल्लाह हाँ, भाई। और मुझे दुआ देंगे, और इंशाल्लाह जरूर। चले दुआ में याद रखें। ठीक है, हम आपको भेजते हैं। हाँ ठीक है।